أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد یان نقشبندی مجددی آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ صالح صحاب کے حوالے سے، اور جو آج 15 رجب جو آئی ہے، اور پھر آگے 22 رجب کے حوالے سے جو کیا اس کے بارے میں حکم ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ڈیٹیل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کو کہ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں مین چیز ایک چیز یاد رکھیں، کوئی بھی چیز عرف عام میں کسی نام سے مشہور ہو، مثال کے طور پر 11ویں 12ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، کنڈے ہوں، یا کوئی بھی چیز ہے، ایسی چیز جو کسی مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جائے، وہ صالح صحاب کہلاتی ہے۔ عرف عام میں کسی چیز کے نام سے بھی مشہور ہو۔ یہ صالح صحاب کا جو طریقہ ہے، یہ نبی پاک سے حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ کہیں گے اس کے بارے میں مزید دلائل کے ساتھ ڈیٹیل بیان فرما دوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ صالح صحاب یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں گے، جو کنڈے جو ہمارے عرف عام کے اندر مشہور ہیں، یہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، یہ 15 رجب ہے، نہ کہ 22 رجب ہے، کیونکہ اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے 15 رجب۔ تمام تاریخ کتب اور تمام سیرت کتب سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی وصال جو ہے 15 رجب ہے، اور 22 رجب حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، اور آپ کا وصال ہے۔ لہذا ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہے کہ 15 رجب کو کنڈے یعنی جو پکائے جاتے ہیں، اور اس کا ختم درود شریف دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 22 رجب حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صالح صحاب کے حوالے سے کیا جاتا ہے انتمام۔ کنڈے اصل میں ایک لفظ بنایا ہے کنڈا، کنڈا کرنا، یہ کنڈا نہیں، اصل میں یہ مٹی کے برتن ہوتا ہے کنڈا، جس کے اندر دہی وغیرہ بھی جمایا جاتا ہے، جو ہمارے عرف عام میں اسٹیل کے جو ہوتے ہیں جس کے اندر دہی وغیرہ جمایا جاتا ہے، اس کو بھی ہم کنڈا کہہ دیتے ہیں، کنڈے دے دے جی، کنڈا دہی کا لے آؤ جی فلاں کر، یہ اس حوالے سے یہ مٹی کے برتن کو کنڈا کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے میں اس میں کھیر وغیرہ پوری وغیرہ بنا کے، جو ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ پنجاب اور پاکستان کے اندر رائج چیزیں ہیں، اصل میں صالح صحاب ہے، یہ 15 رجب کو ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا 15 رجب ہے، اور 22 رجب کو صالح صحاب کی محفلیں ہوتی ہیں، حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز جو آج تمہارے ایک خاص جماعت ہے، خاص گروپ ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ 22 رجب کو وہ یہ کام کرتا ہے جی، رات کے اندھیرے کے اندر جی راتوں رات پکا کے بنا، یہ کوڑا وٹا کے حساب سے مشہور ہمارے اندر یہ رائج ہے، کوڑا وٹا جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں کیا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ رات صالح صحاب کی جہاں تک گفتگو، صالح صحاب قرآن حدیث دونوں سے ثابت ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حضرت ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ دنیا سے
इंतकाल फरमा गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर और कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल फरमाए कि उसका सवाब मेरी माँ को क़यामत तक पहुँचता रहे। आपने फरमाया पानी का कुआं खुदा दो। आज भी जो जादुल मुक़द्दस गए हैं या सऊदी अरब वगैरह गए हैं हज उम्रे के लिए, उसने ज़रूर देखा होगा ज़ियारतों के अंदर एक कुआं, बेड़ उम्म साद, बेड़ कहते हैं अरबी के अंदर कुएं को, बेड़ उम्म साद, साद की माँ का कुआं आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस दलाइल मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साले सवाब का एक तरीका ये भी बताया और आपकी औलाद भी आपकी मग़फ़िरत का बायस है, नेक और साले औलाद। और दीगर ऐसे काम भी हैं जो करने से जिसका सवाब आपको क़यामत तक पहुँचता रहता है। जैसे आपने किसी मदरसे में पैसे दे दिए, मस्जिद के अंदर चंदा कर दिया, उसकी तामीर में हिस्सा लिया है, कोई इस तरह का अमल, या कोई साहिब इल्म है, प्रोफेसर है, टीचर आपने पढ़ा दिया, उसका सवाब जो अब तक वो ज़िंदा रहेगा इस पे अमल करता रहेगा और जहाँ जहाँ तक काम पहुँचता रहेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ये साले सवाब। और एक रिवायत के अंदर आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कौन है दो नफल पढ़ के मेरे साले सवाब करे, यानी जिंदों को भी किया जा सकता है, मुर्दों को भी। दूसरा इसमें यह है कि कब्र वाले क्या सुनते हैं कि नहीं सुनते। इसके अंदर कुरान की आयत भी मौजूद है और इसके अलावा दीगर हदीसें भी मौजूद है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कब्रिस्तान जाने की दुआ इनायत फरमाई। फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वाला सलाम, जब तुम कब्रिस्तान जाओ ये दुआ किया करो। इससे ये है कि मुर्दे, इसी हदीस के अंदर आता है कि मुर्दे इसका जवाब भी देते हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। और वाज़िया तौर पर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए, उसका आयत का मफ़हूम है कि जो अल्लाह के रास्ते कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा और इज़्ज़त भी पाते हैं। और एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्बिया ज़मीन को हराम कर दिया गया कि वह अम्बिया की कब्रों को जिस्मों को खाए। इसके वाज़ह तौर पर बेशुमार हदीसें मौजूद हैं इसके ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर साले सवाब करने का हुक्म दिया और बाकायदा तौर पर महफिल इज्तिमा के अंदर भी वो भी हदीसें मौजूद हैं कि इंशाल्लाह कभी मौका मिला बयान फरमा दूँगा कि बाकायदा तौर पर मौजूद है कि साले सवाब का तरीका मौजूद है। हाँ, इसमें एक चीज़ कंफ्यूजिंग क्लियर कर दूं कि साले सवाब के अंदर अगर किसी की नीयत ये है कि मैं साले सवाब कर रहा हूँ, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ किया, अल्लाह की नज़र करता हूँ और उनके वसीले से अल्लाह की नज़र करता हूँ और इसका सवाब है वो फ़लाने बुज़ुर्ग, फ़लाने हस्ती को मैं हदिया तौर पर हदिया कर देता हूँ, तो उसके लिए वो तरीका जायज़। अगर वो नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह ये कहे कि नियाज़ ही उसकी पकी है, वो हराम हो जाता है। और इसके हवाले से ये न्याज हुसैन या न्याज कोई भी की जाती है तो वो नज़र अल्लाह ही की जाती है। जो कुरान मजीद के अंदर वाज़ह तौर पर हुक्म है किसी हराम होने के लिए कुरान और हदीस की कभी दलाल मौजूद होने चाहिए। लिहाजा अल्लाह ने क्लियर फरमाया तुम पर खंजीर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िब्हा किया हुआ जानवर या खून, बहता खून, ये चीज़ें सारी हराम कर दी हैं तुम पर कि तुम इनको नहीं खा सकते। या इसके अंदर उलमा इकराम ये भी करते हैं कि जो गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज़ दी जाए वो भी हराम हो जाती है, लेकिन जो न्याज नज़र अल्लाह न्याज के तौर पर या किसी साले सवाब के लिए जो कोई बंदा करता है उसके लिए ये जायज़ है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह की नज़र पर ज़िबा किया जाता है लेकिन वो उसका सवाब फलाने बंदे के साथ मनसूख कर दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हम कुर्बानी के दिनों में देखते हैं कि बकरे जानवर बंदे होते हैं, किसका जी, ये फलाने हाजी साहब का, ये मुन्नू का है, चुन्नू का, यानी इस तरह के वो कहते हैं जी इस नाउज़ुबिल्लाह माज़ा ये नहीं हो जाता कि वो बकरा उसी के नाम पर ज़िबा किया जाता है बल्कि अल्लाह के नाम पर किया जाता है और नज़र अल्लाह की जाती है इसके ऊपर। और कुर्बानी का यही फ़लसफ़ा है और इसमें
सवाब फलाने बंदे के साथ मनसूख कर दिया जाता है। ये तरीके से कोई करता है और जायज़ है, ठीक है, और सुन्नत से भी साबित है। अगर कोई इसके अलावा जैसे बुतों हिंदुओं के अंदर दूसरों के अंदर रह के फलानी माता है फलानी चीज़ के नाम पर ज़िबा कर दिया, उसके नज़र कर दी, ये तरीका हराम है और इसके खाना भी हराम है और इसको हर किस्म हर तरीके से हराम गोश्त और झटके के किया हुआ गोश्त भी हराम है, सिवाय अहले किताब के, क्योंकि वो भी अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हैं, लिहाजा तौर पे उनका ज़िबिया हलाल है। बाकी दीगर अक़वाम का जो ज़िबिया है वो झटका करते हैं और गैर अल्लाह के नाम पर ज़्यादातर ज़िबा करते हैं, इसलिए उनका खाना पीना हर चीज़ हराम है। और साले सवाब का यही सही तरीका है। और कब्र वालों के बारे में एक हदीस बयान फरमा दूँ कि कब्र वाले अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा है। उसका ये है हदीस मौजूद है कि मुस्लिम अहमद के अंदर भी मौजूद है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे हुजरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनी तो मैं बग़ैर पर्दे के जाया करती थी। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र बनी फिर भी मैं बग़ैर पर्दे के जाया करती थी। यानी एक मेरा शौहर है, एक मेरा बाप है। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बनी तो आप पर्दा करके जाया करती थी और आपने ये किया था कि उसके अंदर एक पर्दा नस्ब कर दिया कि हुजरे के दो हिस्से कर दिए। एक के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद रहते थे और दूसरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक थी। लिहाजा इससे क्लियर ये भी हो जाता है कि मुर्दे देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें हदीसें भी मौजूद है, कुरान की आयात भी मौजूद है, सब कुछ बयान कर दें इंशाल्लाह। अगर मज़ीद कहेंगे इसके अंदर वज़ाहत बयान फरमा दूँगा। यही है कि कुंडों के हवाले से मेन ये चीज़ है कि रजब के हवाले से कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की विसाल की 15 रजब है, ना कि 22 रजब। 22 रजब हज़रत मीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से है। अगर कोई साले सवाब की महफिलें करता है, ठीक है, वो अपनी सही करता है, लेकिन जो उनके बुग़्ज़ में कोड़ा वट्टा या कोई चीज़ पकाता है वो खाना भी हराम, हर चीज़ हमारे लिए हराम है। वो उनके लिए जायज़ है जो उनके बुग़्ज़ में करते हैं या रात के मखसूस पहरे में करते हैं। और एक जो कुंडों का उर्फ़ी तौर पर मशहूर है 15 रजब का, इसमें यही है कि इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे खाना चाहे ये भी रोने के कुंडे ही खीर वगैरह पकाई जाए, कोई और चीज़ भी पका कर ख़त्म दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ क्लियर कर दें। दूसरा इसके अंदर यही है कि आप अगर करना चाहते हैं बेशक करें, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके अंदर किसी सहाबी या किसी अहले बैत या किसी अंबिया की किसी की गुस्ताखी का पहलू ना हो। बस मुझे यही बयान फरमाया और इसमें इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर फिर मुलाकात होगी।